यूनिट 11 हनी। आज हम शहद और शहद की मक्खी के बारे में पढ़ेंगे। Where do you think honey comes from? सोचो, शहद कहाँ से आता है? थोड़ा सोचने के लिए वक्त लो। Nasir and his grandfather go for a walk early in the morning every day. नासिर और उसके ग्रैंडफादर रोज सुबह जल्दी वॉक पर जाते हैं। His grandfather is old but in good health. उनके ग्रैंडफादर उम्र में बड़े हैं, लेकिन उनकी सेहत अच्छी है। नासिर has to walk very fast to keep up with him. नासिर को उनके साथ रहने के लिए बहुत तेज चलना पड़ता है। They stop at the park for 10 minutes and do some exercises. वो पार्क में 10 मिनट रुकते हैं और कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। They come back and have breakfast together before Nasir goes to school. फिर वापस आकर साथ नाश्ता करते हैं, उसके बाद नासिर स्कूल जाता है। Grandfather, why do you have honey for breakfast every day? नासिर पूछता है, ग्रैंडफादर, आप रोज नाश्ते में शहद क्यों लेते हैं? It is excellent for health. You should also have it daily. ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तुम्हें भी रोज लेना चाहिए। Walking, exercising, and eating honey are the secrets of my good health. चलना, एक्सरसाइज करना और शहद खाना, यही मेरी अच्छी सेहत का राज है। Do you know who makes honey? तुम्हें पता है शहद कौन बनाता है? I know that bees make it, but I don't know much about them. मुझे पता है कि बीज बनाती है, मगर मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता। Let me tell you. You will be very surprised. सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम बहुत हैरान होगे। First, let me describe the honey bee. पहले मैं तुम्हें हनी बी के बारे में बताता हूँ। It has a body that is divided into 3 sections, the head, the thorax, chest, and the abdomen. उसका जिस्म 3 हिस्सों में बनता है, head, thorax यानी chest, और abdomen. Honey bees can be black or light brown in color. शहद की मक्खियाँ काली या हल्के भूरे रंग की होती हैं। A bee has 5 eyes, 3 small ones on top of its head and a large eye on each side of its head. बी की 5 आंखें होती हैं, 3 छोटी सर के ऊपर और एक बड़ी दोनों तरफ। How does it fly? ये उड़ती कैसे है? A bee has 2 thin wings on each side of its thorax. बी के thorax के दोनों तरफ 2 बारीक wings होती हैं। A bee can fly sideways, forward, and backward, and can hover in one place. बी sideways, आगे और पीछे उड़ सकती है, और एक ही जगह ठहर भी सकती है। Just like a helicopter. बिल्कुल हेलीकॉप्टर की तरह। Exactly like that. बिल्कुल ऐसी ही। I have seen bees flying from flower to flower. मैंने बीज को एक फूल से दूसरे फूल पर जाते देखा है। The bee's body is covered with fine hair. बी का जिस्म बारीक बालों से ढका होता है। When a bee travels from flower to flower, it collects pollen, which sticks to their hair. जब भी एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है, फिर पोलन जमा करती है, जो उसके बालों से चिपक जाता है। Do you remember the hive in the park? You told me not to go near it. पार्क वाला हाइव याद है? आपने मुझे उसके करीब जाने से मना किया था। Yes. There are worker bees who make the hive and produce honey and wax. हाँ, वर्कर बीज हाइव बनाती हैं
और शहद और मोम भी बनाती हैं। Why are they called worker bees? इन्हें worker bees क्यों कहते हैं? Because they work very hard. Honey bees live in large colonies. क्योंकि ये बहुत मेहनत करती हैं। शहद की मक्खियां बड़ी कॉलोनीज में रहती हैं। The worker bees are always very busy. वर्कर बीज हमेशा बहुत मसरूफ रहती हैं। Some workers collect nectar, which is a sweet liquid that is found in flowers. कुछ वर्कर्स नेक्टार जमा करती हैं, जो एक मीठा लिक्विड है और फूलों में होता है। They also keep the hive clean, take care of the eggs, and feed the baby bees that come out of the eggs. वो हाइव को साफ रखती हैं, अंडों की देखभाल करती हैं और उनसे निकलने वाले नन्हे बच्चों को खिलाती हैं। Each colony has a small number of male bees called drones. हर कॉलोनी में थोड़ी सी नर बीस होती हैं, जिन्हें ड्रोन्स कहते हैं। What is a male bee called? सोचो, नर मक्खी को क्या कहते हैं? जवाब अभी सफ़े पर लिखा है। A drone. नर बी को ड्रोन कहते हैं। Who is the leader of the hive? हाइव की लीडर कौन है? There is only one queen bee. She is the mother of the colony and everybody has to obey her. सिर्फ एक क्वीन बी होती है। वो पूरी कॉलोनी की माँ है और सबको उसकी बात माननी पड़ती है। Wow! I can't wait to tell my friends about the busy bees. वाह! मैं अपने दोस्तों को उन मसरूफ बीस के बारे में जरूर बताऊंगा। थोरैक्स। नया लफ्ज थोरैक्स। इसको तोड़ते हैं दोरैक्स। जोर दो पर है। THORAX। लफ्ज को साउंड के हिस्सों में तोड़कर स्पेलिंग याद करना सबसे आसान तरीका है। थोरैक्स द चेस्ट पार्ट ऑफ एन इंसेक्ट। थोरैक्स बी के जिस्म का बीच वाला हिस्सा है, यही विंग्स और लेग्स लगती हैं। A bee has two thin wings on each side of its thorax. बी के थोरैक्स के दोनों तरफ टू बारीक विंग्स होती हैं। एब्डोमेन। नया लफ्ज एब्डोमेन। इसको तोड़ते हैं अब। जोर अप पर है। ABODOMEN। एब्डोमेन द बैक पार्ट ऑफ एन इंसेक्ट्स बॉडी। एब्डोमेन बी के जिस्म का आखिरी और सबसे बड़ा हिस्सा है। The stripes are on the bee's abdomen. बी के एब्डोमेन पर ही वो पीली काली धारियां होती हैं। पॉलिन। नया लफ्ज पॉलिन। इसको तोड़ते हैं पॉले। जोर पॉल पर है। POLLEN। पोलन द येलो डस्ट इनसाइड अ फ्लावर। पोलन फूल के अंदर की पीली धूल है जो बी के बालों से चिपक जाती है। When a bee travels from flower to flower, it collects pollen. जब भी एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है, फिर पोलन जमा करती है। नेक्टार। नया लफ्ज नेक्टार। इसको तोड़ते हैं नेक्टार। जोर नेक पर है। NECTAR। नेक्टार अ स्वीट लिक्विड फाउंड इन फ्लावर्स। नेक्टार एक मीठा लिक्विड है जो फूलों में होता है। Some workers collect nectar, which is a sweet liquid. कुछ वर्कर्स नेक्टार जमा करती हैं, जो एक मीठा लिक्विड है। हाइव। नया लफ्ज हाइव। इसको तोड़ते हैं हाइव। जोर हाइव पर है। HIVE। हाइव द होम ऑफ द बीज। हाइव बीज का घर है, जहां वो शहद और मोम बनाती हैं। डू यू रिमेंबर द हाइव इन द पार्क? पार्क वाला हाइव याद है।
कॉलोनी। नया लफ्ज कॉलोनी। इसको तोड़ते हैं कर्नल ONY। जोर कर्नल पर है। COLPOSEN-Y। कॉलोनी अ लार्ज ग्रुप लिविंग टुगेदर। कॉलोनी का मतलब है एक बड़ा ग्रुप जो मिलकर रहता है। हनी बीज लिव इन लार्ज कॉलोनीज। शहद की मक्खियां बड़ी कॉलोनीज में रहती हैं। ड्रोन। नया लफ्ज ड्रोन। इसको तोड़ते हैं ड्रोन। जोर ड्रोन पर है। DRONE। ड्रोन अ मेल बी। ड्रोन नर बी को कहते हैं। ईच कॉलोनी हैज अ स्मॉल नंबर ऑफ मेल बीज कॉल्ड ड्रोन्स। हर कॉलोनी में थोड़ी सी नर बीज होती हैं जिन्हें ड्रोन्स कहते हैं। क्वीन बी। नया लफ्ज क्वीन बी। इसको तोड़ते हैं क्वीन बी। जोर क्वीन पर है। QUEENBEE। क्वीन बी द मदर ऑफ द होल कॉलोनी। क्वीन बी पूरी कॉलोनी की माँ है। देयर इज ओनली वन क्वीन बी। सिर्फ एक क्वीन बी होती है। A bee has 5 eyes and a body of 3 sections. बी की 5 आंखें होती हैं और जिस्म 3 हिस्सों में। Worker bees make the hive and produce honey and wax. वर्कर बीज हाइव बनाती हैं और शहद और मोम भी। Only one queen bee is the mother of the colony. सिर्फ एक क्वीन बी होती है जो पूरी कॉलोनी की माँ है। Walking, exercising and eating honey keep you healthy. चलना, एक्सरसाइज करना और शहद खाना सेहत का राज है।